So welcome, good morning to the students. This is the lecture, benchurimeter, on the benchurimeter. This is the practical application of the Bernoulli theorem. Sorry. So आज जो मेरा लेक्चर है वो किसके ऊपर है? बेंचुरीमीटर के ऊपर. What is benchurimeter? Or you can say, what is the function of benchurimeter? So benchurimeter is a device to measure. It is used for measuring the discharge of the fluid or rate of flow of the fluid which is passing through the pipe. Right? बेंचुरीमीटर क्या है? बेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं? We will find the discharge. We will calculate the discharge of the fluid which is passing through the pipe. Right? So this is the practical application of the Bernoulli's theorem, जो कि previous lectures में मैंने आपको बर्नौली थ्योरम के बारे में बताया था. So this is the practical application. So let us start now the benchurimeter. So you can say first I will write down benchurimeter is used. लिख लीजिए benchurimeter क्या है? benchurimeter is used to measure the rate of flow or discharge of discharge of the fluid which is passing through the pipe. Right? So benchurimeter का definition आपको clear हो गया कि for what purpose we use the benchurimeter. We use the benchurimeter to find the discharge or the rate of flow of the fluid which is passing through the pipe. ये discharge find out करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. You understand this? अब benchurimeter का प्रिंसिपल क्या है? What is the principle? किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? हमें इसका प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए. What is the principle of the benchurimeter? तो फर्स्ट क्या है इसका? To reduce the cross sectional area through which the fluid passes. Right? तो हमें इसका क्या है? पहले to reduce the cross sectional, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं मैं आपको. To reduce the cross sectional area through which the fluid passes. तो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल था कि इसका जो शेप होगा वो हमें किस तरीके से बनाना है कि इसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करना है. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसे ये पाइप है, इस पाइप से फ्लूइड पास कर रहा है. हमने क्या किया कि इस पोर्शन के ऊपर सेक्शन 1 जहां पे ले लीजिए, ये आपका पोर्शन क्या है? ये पाइप है. दिस इज द बेंचुरीमीटर फ्रॉम हियर. तो ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द डिमेंशन ऑफ द पाइप. तो जहां से आप देखेंगे कि व्हेन द फ्लूइड इज पासिंग हियर इन द पाइप एंड दिस इज योर बेंचुरीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज योर बेंचुरीमीटर. So we are reducing the cross sectional area of the benchurimeter.
सो फर्स्ट क्या है, टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेंचुरीमीटर थ्रू विच द फ्लूइड पासिस। सेकंड इसका प्रिंसिपल है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हम रिड्यूस करेंगे क्या होगा, सो व्हाई रिड्यूसिंग the cross sectional area, what happens by reducing the cross sectional area, pressure difference will be developed between the, this is your section 1 ले लेंगे हम, pressure difference will be developed, so this is your section 1, so pressure difference will be developed between the two sections, that is developed between the intake, ये क्या है, जहां पे आपका इनटेक सेक्शन है, क्योंकि जहां तक तो आपकी पाइप थी और जहां से आपका वेंचुरीमीटर, यू हैव अप्लाइड द वेंचुरीमीटर हियर, राइट, सो प्रेशर डिफरेंस विल बी डेवलप्ड बिटवीन द टू sections 1 and 2, right? तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, डेवलप होगा, एंड बाय मेयरिंग द प्रेशर डिफरेंस, कैसे प्रेशर डिफरेंस को वे मेयर करेंगे, आइदर वाइज यूजिंग द U-tube differential manometer or the piezometer that is applied here. So with the help of this U-tube differential manometer or piezometer, we will measure the pressure difference between the the two sections, and then discharge will be calculated. You understand this? तो ये एक इसका डेफिनेशन और बेसिक प्रिंसिपल था. नाउ यू अंडरस्टैंड. ये मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया सो दैट यू मस्ट write down this thing. So what is venturimeter? First we will come to this point. What is venturimeter? Venturimeter is that device which is used for measuring the rate of flow or discharge of the fluid which is passing through the pipe, right? तो वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम जो फ्लूइड पाइप में पास करता है, अगर उसको हमने मेजर करना है कि उसका डिस्चार्ज का कितना क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, तो हम वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. एंड दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम. ये जो आपका वेंचुरीमीटर है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम. क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके ही हम प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? सो इसका जो प्रिंसिपल है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा, इसका प्रिंसिपल है कि जैसे ये पाइप से फ्लूइड जो है पास कर रहा है, तो उस फ्लूइड का हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? सो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करेंगे, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करने से प्रेशर डिफरेंस होगा. दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन, फर्स्ट आई एम गिविंग दैट. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा
जो प्रेशर अगर आपका सेक्शन 1-1 के ऊपर है, वो उसका प्रेशर अगर सपोज P1 है, तो जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जहां पे मिनिमम एरिया होगा वहां पे प्रेशर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन दो सेक्शंस के बीच में देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, और इस प्रेशर डिफरेंस को क्या करेंगे हम, दैट वी विल मेयर विद द हेल्प ऑफ द U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर्स or piezometer, right, or inverted U-tube differential manometer. So by using the measuring devices, right, we can calculate the pressure difference, and when we will get the pressure difference, then we can calculate the discharge of the fluid which is passing through the pipe or which is flowing through the pipe. You understand this? Yes. This is the definition and introduction. Now we will come to the construction of the वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर की क्या कंस्ट्रक्शन है, वो विल आप उसके ऊपर देखेंगे हम कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर क्या है, वेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, राइट। वेंचुरीमीटर आपका 3 पार्ट्स में कंसिस्ट हुआ है। देयर आर 3 पार्ट इन द वेंचुरीमीटर। One part is called is the short converging part, right? Second part is your throat. Second part क्या है, throat, and the third part is long diverging part. So it consists of 3 parts, that is short converging part, जो converging part होगा वो क्या होगा, short होगा। जो diverging part है इसका वो long होगा, इससे जो आपका converging part है उससे बड़ा होना चाहिए। इन सभी का मैं रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, राइट। When we will एक लेक्चर में इसके ऊपर दूंगा कि why the converging part is short and why the diverging part is long। तो इसका सारा जो इसका बेसिक प्रोसीजर है, जो भी इसका प्रिंसिपल है, किस लिए ये ऐसा किया जाता है, इसके ऊपर पूरा सेपरेट लेक्चर होगा। तो इसलिए जहां पे मैं इसको मिक्स नहीं करूंगा, सिंपली आप इसमें आ जाइए कि अगर आपको वेंचुरीमीटर का दिया है तो वेंचुरीमीटर में क्या चीजें हैं, देयर आर द 3 पार्ट्स, दैट इज द शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, throat and the long diverging part। अब short converging part क्या होगा, this is your pipe, right। जो short converging part का inlet होगा, the inlet of this converging part you can say, तो जो inlet होगा converging part का, inlet of the converging part is equal to the, ये किसके बराबर होगा, diameter of the pipe। जो पाइप का डायामीटर होगा वो इसका इनलेट होगा, इसका वेंचुरीमीटर का या इनलेट होगा कन्वर्जिंग पार्ट का, बिकॉज योर वेंचुरीमीटर इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये आपका कन्वर्जिंग पार्ट है, दिस इज योर डाइवर्जिंग पार्ट, राइट। तो जो आपका इनलेट पार्ट होगा, इसका जो आप कह सकते हैं इसका जो डायामीटर होगा, दिस इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द पाइप। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ थ्रोट, व्हाट इज द थ्रोट? थ्रोट क्या है? थ्रोट इज पार्ट है जिसका क्या होगा, मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। अब ये आ गया इनलेट। अब कन्वर्जिंग पार्ट क्या होगा, ये जो आपकी ओरिजिनल पाइप है इसको अंडरस्टैंड करें, दैट कन्वर्जिंग पार्ट इज द टेपर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पाइप टू द थ्रोट। क्या है कि टेपर पोजीशन के ऊपर होगा, इस तरीके से टेपर होगा फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द पाइप, फ्रॉम द ओरिजिनल साइज ऑफ द पाइप, यू कैन से फ्रॉम द ओरिजिनल साइज ऑफ द पाइप
टू द थ्रोट, राइट। ये होगा कन्वर्जिंग पार्ट। द पाइप इज टेपर्ड फ्रॉम हियर, फ्रॉम इनलेट, फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट, एंड देन इट विल बी कन्वर्ज लाइक दिस, राइट, एंड इट विल रीच हियर अप टू दिस पॉइंट। तो जहां पे जो होगा दिस पार्ट, ये पार्ट जो आपका है, इतना सा पार्ट, दिस इज पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड द थ्रोट। यू अंडरस्टैंड दिस? तो जहां से देखिए, ये पाइप का डायमीटर जहां पे इतना था, जो इनलेट है वेंचुरीमीटर, उस पर भी डायमीटर इतना था। अब उसके साथ क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका डायमीटर आपका क्या हो रहा है, डायमीटर इसका रिड्यूस हो रहा है, राइट। एंड एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, जहां पे क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? अब आ जाइए डाइवर्जिंग पार्ट के ऊपर। डाइवर्जिंग पार्ट क्या है? डाइवर्जिंग पार्ट, दिस इज ए लॉन्ग, फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज लॉन्ग एज कंपेयर टू योर कन्वर्जिंग पार्ट। इसका जो, अगर कन्वर्जिंग पार्ट का लेंथ इतना है, तो जो डाइवर्जिंग पार्ट होगा उसका लेंथ जो है कन्वर्जिंग पार्ट से ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी सिर्फ आप इतना समझिए, डाइवर्जिंग पार्ट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डाइवर्जिंग पार्ट। यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, थ्रोट से फिर ये पाइप टेपर होगी, एंड ये जो ओरिजिनल जो पाइप का डायमीटर है, राइट, जहां तक, फ्रॉम थ्रोट टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द पाइप। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द टेपर्ड फ्रॉम द थ्रोट टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द पाइप। तो ये तीन पार्ट थे इसमें। क्या था? कन्वर्जिंग पार्ट था, कन्वर्जिंग पार्ट इज शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। थ्रोट, एट द थ्रोट क्या होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं थ्रोट, जहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और जो डाइवर्जिंग पार्ट है ये आपका लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द कन्वर्जिंग पार्ट, बट इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ये जो शॉर्ट है जहां पे तो इमीडिएटली डिक्रीज होगा, लेकिन जहां पे हम इमीडिएटली इंक्रीज नहीं करेंगे, इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसलिए इसका जो डाइवर्जिंग पार्ट है वो क्या होगा, लॉन्ग। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया, प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये चलता है, राइट। अब देखिए, जहां से जहां तक आपका सपोज करो ये जो सेक्शन 1 के ऊपर है, यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थ्रोट के एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया कि थ्रोट के ऊपर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? सपोज आई से द फ्लूइड इज पासिंग एंड इट इज हैविंग वेलोसिटी v1 एट दिस सेक्शन। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है इस सेक्शन के ऊपर। जैसे जैसे जब ये इधर से पास करेगा फ्लूइड, जहां से जैसे जैसे पास करेगा क्या होगा, जैसे जैसे इसका कन्वर्जिंग पार्ट जो है, जब फ्लूइड वहां पे पहुंचेगा तो कन्वर्जिंग पार्ट क्या है, उसका एरिया जो है वो क्या होगा, टेपर होना शुरू हो जाएगा। टेपर का मतलब क्या है कि उसका एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब उसका एरिया डिक्रीज होना शुरू होगा तो क्या होगा, जब एरिया कम होता जाएगा तो जो वेलोसिटी v1 है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर जहां पे वेलोसिटी v1 है तो जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, v1 से ज्यादा होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगी। नाउ हियर इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। थ्रोट के ऊपर क्या है, जब फ्लूइड थ्रोट के ऊपर पहुंचेगा वेलोसिटी v1 जो है जहां से इंक्रीज होती जा रही है। यू अंडरस्टैंड दिस? इसको ध्यान से सुनिए, क्यों वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आवर क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, राइट। हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ड्यू टू दिस कन्वर्जिंग पार्ट जो हमारा वेंचुरीमीटर का है, तो जैसे जैसे लिक्विड कन्वर्ज होता जाएगा उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां लिक्विड जहां से पास करेगा, फ्लूइड जो पास करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा। और आपकी जो वेलोसिटी है
इसकी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। नाउ यू कम टू दिस पॉइंट। जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे थ्रोट के ऊपर, तो यू नो दैट एट थ्रोट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम। यू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी आपकी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही। थ्रोट के ऊपर मैंने बोला कि देयर इज अ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां पे मिनिमम है? एट द थ्रोट। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम एट द थ्रोट, व्हाट हैपेंस? द वेलोसिटी हियर इज मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होगा? एट द थ्रोट वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मिनिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो थ्रोट के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, बट प्रेशर आपका क्या है? मिनिमम है। तो आप लिख सकते हैं थ्रोट के ऊपर क्या क्या चीज हमें मिलती है। अगर थ्रोट की बात करूं मैं, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्रोट। पहले आ गया, फर्स्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम। पहला पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इसमें मिनिमम है। फर्स्ट पॉइंट विच आई टोल्ड यू। सेकंड क्या होगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका मिनिमम होगा तो जहां पे क्या होगा? आपकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जहां आप एवरेज वेलोसिटी लिख लो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जब आपकी एवरेज वेलोसिटी फ्लूइड की मैक्सिमम होगी, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं हम, तो क्या होगा? आपका प्रेशर जो है इस पॉइंट के ऊपर, थ्रोट के ऊपर, प्रेशर क्या होगा? इज प्रेशर आपका मिनिमम होगा, राइट? पहले हम यही तीन चीजें लिखते हैं। प्रेशर आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। तो जहां पे आपका क्या होगा? प्रेशर मिनिमम है, जहां पे प्रेशर आपका मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? प्रेशर मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर आपका रिड्यूस होता जाएगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं प्रेशर P1 कहता हूं, तो ये जो थ्रोट के ऊपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P2 होगा। P1 is the maximum pressure here and P2 is the minimum pressure. You understand this? अच्छा, अब हम थ्रोट के ऊपर तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी। जहां पे वन मोर कंडीशन होगी, अब जो सर स्ट्रीम लाइन है, अब देखिए स्ट्रीम लाइन इसकी कैसे होगी? ये पाइप से फ्लूइड जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट? द फ्लूइड इज पासिंग लाइक दिस, राइट? मैं कहता हूं जहां पे आपकी सेंटर लाइन, दिस इज योर सेंटर लाइन, राइट? ये सेंटर लाइन है। क्या होगा? इस तरीके से आपका फ्लूइड पास करेगा, ये इस तरीके से चलेगा, राइट? ये सेंटर लाइन के ऊपर इस तरीके से। लेकिन जहां पे जो थ्रोट एरिया होगा, जो आपका थ्रोट एरिया होगा, वहां पे जो स्ट्रीम लाइन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ये भी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रीम लाइन क्या होगी आपकी? स्ट्रीम लाइंस आर स्ट्रेट। जो स्ट्रीम लाइंस होंगी इस पॉइंट के ऊपर क्या होंगी? स्ट्रीम लाइंस ऑफ द फ्लूइड। स्ट्रीम लाइंस किसकी? ऑफ द फ्लूइड लिख लो पूरा। स्ट्रीम लाइंस ऑफ the fluid are straight. You understand this? तो ये चार पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्रॉस सेक्शन थ्रोट के ऊपर हमारा क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑलवेज मिनिमम। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? वहां पे मैक्सिमम होगी। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेशर क्या होगा आपका? प्रेशर आपका मिनिमम होगा। और स्ट्रीम लाइंस जो है वो आपकी क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। कहां पे? ये जो आपका थ्रोट एरिया जहां पे, और उसके बाद फिर ये स्ट्रीम लाइंस फिर डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां तक क्लियर है आपको? दिस इज क्लियर टू यू? नाउ जस्ट सी, अब देखिए इसमें थ्रोट के बारे में हमने इसका कंप्लीट पढ़ लिया कि थ्रोट में हमें क्या क्या मिलता है। अब देखिए थ्रोट में एक प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू that the pressure is minimum at the throat.
अगर प्रेशर मिनिमम होगा थ्रोट का, तो जो आपका वेपर प्रेशर है या एयर पॉकेट्स हैं वो क्या होंगी, वहां पे डेवलप होंगी। अगर मिनिमम प्रेशर होगा तो क्या होगा, अगर आपका मिनिमम प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो क्या होगा, वहां पे बबल्स फॉर्म होंगे, एयर पॉकेट्स डेवलप होंगी। यू अंडरस्टैंड दिस। और जब ये बबल्स और एयर पॉकेट्स जब हाई प्रेशर रीजन में जाएंगे, व्हाट हैपेंस, देयर इज द बर्स्टिंग ऑफ द एयर पॉकेट्स एंड द बबल, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा ये पॉइंट होना चाहिए कि प्रेशर तो हमें मिनिमम मिलेगा यहां पे, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा मिनिमम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा थ्रोट के ऊपर मिनिमम है, तो हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा। बट अगर प्रेशर मिनिमम होता है, जो हमारी एक लिमिट है, उससे ज्यादा उसका अगर प्रेशर मिनिमम हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा, यू कैन से अगर आपका प्रेशर मिनिमम जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, उससे भी मिनिमम हो जाता है, तो क्या होगा, आपके बबल्स डेवलप होंगे, वहां पे एयर पैकेट्स डेवलप होंगी, और जब हाई प्रेशर जोन में वो पहुंचेंगी तो व्हाट हैपेंस, दैट विल बर्स्ट। तो हमारा एक ये भी पॉइंट बनता है कि हमारा प्रेशर जो है वो विद इन द लिमिट मिनिमम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा इतना मिनिमम होना चाहिए कि उसकी एक लिमिट हो, अगर उससे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका मिनिमम होगा, सो देन व्हाट हैपेंस, these conditions which I told you, that the bubbles will develop, air pockets will develop there, and that they will be bursted when the fluid reaches to the higher pressure zone. You understand this? तो हमें ये जो फिनोमेना है, जहां पे ये जो फिनोमेना फॉर्म होगा, अगर हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, बिलो द वेपर प्रेशर, उस फिनोमेना को कहते हैं हम कैविटेशन। यू अंडरस्टैंड दिस। तो कैविटेशन हमारा क्या है, व्हाट इज कैविटेशन, कैविटेशन मींस द प्रेशर व्हेन इट इज बिलो द वेपर प्रेशर्स, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, एयर बबल्स विल फॉर्म, एयर पॉकेट्स विल फॉर्म, राइट, एंड that will you can say that will, when it will go to the higher pressure zone, that will be bursted. You understand this? तो ये हमारा कैविटेशन है, इसे हम कैविटेशन प्रोसेस कहते हैं। कि कैविटेशन कहां पे होगी मैक्सिमम, अगर वेंचुरीमीटर की बात करो तो कैविटेशन मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम होगा, और वेंचुरीमीटर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम का है थ्रोट के ऊपर। तो पांचवा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं थ्रोट का, अगर मैंने 4 पॉइंट लिखते हैं तो मैक्सिमम कैविटेशन, मैक्सिमम कैविटेशन एट थ्रोट, मैक्सिमम कैविटेशन एट थ्रोट। यू अंडरस्टैंड। सो ये पॉइंट 5 आप लिख लीजिए, कौन कौन से हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम, velocity of the fluid is maximum, pressure is minimum, streamlines of the fluid are straight, and the maximum cavitation at throat. So these are the 5 significance point which you have to remember at the throat. You understand this? ये 5 important point हैं, ये आपको याद करने हैं कि थ्रोट के ऊपर हमें क्या क्या कंडीशंस फ्लूइड की होगी, क्या क्या हमें मिलेगा और क्या कंडीशंस होगी। ये जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसको आपने रिमेंबर करना है। यू अंडरस्टैंड दिस। जहां तक आपको क्लियर है, अप टू दिस इज क्लियर। अब देखिए आगे, सो इसको मिटा देते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
अब देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, थ्रोट में क्या है, एट थ्रोट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम, राइट, एंड प्रेशर इज मिनिमम, प्रेशर इज मिनिमम, ठीक है ना। ये तो अभी आपको बताया मैंने। तो कैविटेशंस जहां पे फॉर्म होगी, राइट, तो प्रेशर मिनिमम है, देन व्हाट हैपेंस, कैविटेशन थ्रोट के ऊपर, कैविटेशन एट थ्रोट इज मैक्सिमम, राइट। So in order to reduce the cavitation, but we have to keep the area of the throat is minimum, but up to some certain limit. एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रोट का होना चाहिए वो मिनिमम हो, लेकिन विद इन सम लिमिट्स। तो लिमिट्स को किस तरीके से हम जहां पे डिफाइन करेंगे, ये थ्रोट का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, थ्रोट क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रोट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूजली हम जो लेते हैं ये 1/3 to 3/4 डायामीटर ऑफ द पाइप। जिस पाइप के ऊपर हमने वेंचुरी मीटर लगाया है, जहां पे हमने फ्लो जिसका पाइप में वाटर का मेयर करना है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो थ्रोट का होगा, यूजली वी विल टेक 1/3 to 3/4 डायामीटर ऑफ द पाइप। बट जो यूजली हम लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल एक फार्मूला है जो हम यूजली लेते हैं, ये तो हो गया रेंज, जो यूजली हम लेते हैं दैट इज द 1/2 into diameter of the pipe, diameter of the pipe। ये आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो हम यूजली लेते हैं, यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर इससे कम एरिया होगा तो हमारा क्या नुकसान होगा, यहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, एयर पॉकेट्स होंगी, बबल की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो कैविटेशन जहां पे क्या होगी, अकर करेगी। तो इसका कैविटेशन को रिड्यूस करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें जो थ्रोट का एरिया है वो हमें मिनिमम लेना है, बट विद इन सम लिमिट्स, सर्टेन लिमिट्स के ऊपर। और वो लिमिट क्या होगी कि यूजली जो हम थ्रोट का एरिया है वो हम कितना लेते हैं, जितना पाइप का जो डायामीटर होगा उसका हाफ, राइट। जो पाइप का अगर डायामीटर ये है तो उसका हाफ जो है ये एरिया ऑफ द थ्रोट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो जे भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, राइट। अब देखिए इसके बाद अब जो वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल था, जैसे मैंने आपको बताया कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क्स करता है, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट सेक्शन एंड द थ्रोट सेक्शन, यू अंडरस्टैंड दिस। तो वेंचुरी मीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि प्रेशर डिफरेंस किसके बीच में, इनलेट सेक्शन के बीच में और थ्रोट के सेक्शन के बीच में। अब देखिए ये प्रेशर डिफरेंस इनलेट सेक्शन और थ्रोट सेक्शन के बीच में कैसे डेवलप होता है, कैसे क्रिएट होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, क्या होगा कि ये जो आपका कन्वर्जिंग पार्ट है, जहां पे आपका एरिया जो है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, राइट। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा
and the fluid is flowing within this converging part, what happens? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? अगर इसका कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी? जहां पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और जब आपका जो थ्रोट के ऊपर फ्लूइड पहुंचेगा, स्ट्रीमलाइंस पहुंचेंगी फ्लूइड की, तो क्या होगा? एट थ्रोट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आपका मिनिमम होगा। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, 1-1 सेक्शन की बात करूं, तो ये जो 1-1 सेक्शन है, दैट सेक्शन इज एट द इनलेट ऑफ द वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर का इनलेट है उसके ऊपर ये सेक्शन है। तो मैं कहता हूं कि इस सेक्शन के ऊपर आपका प्रेशर आपका P1 है, B1 है, राइट? प्रेशर P1 है और वेलोसिटी V1 है, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता जाएगा, तो सेक्शन 2 के ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी आपकी B1 से B2 हो जाएगी, मींस मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी से एट B2 से एट 2-2 सेक्शन। 2-2 सेक्शन के ऊपर क्या होगा? प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा, प्रेशर आपका रिड्यूस होगा P1 से P2 हो जाएगा और वेलोसिटी आपकी B1 से B2 हो जाएगी। क्या होगा? वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी जहां पे, तो प्रेशर आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। जहां पे देखिए, जहां पे हायर प्रेशर था P1, और जब ये कन्वर्जिंग पार्ट से हमारा फ्लूइड फ्लो किया, व्हाट हैपेंस? आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ P1 से P2। थ्रोट सेक्शन के ऊपर मैंने कहा कि द प्रेशर इज P2 एंड इनलेट सेक्शन के ऊपर प्रेशर P1 था। प्रेशर किस लिए ड्रॉप हुआ? क्यों ड्रॉप हुआ? रीजन ये था कि हमारा जो कन्वर्जिंग पार्ट था, और जब फ्लूइड जो था कन्वर्जिंग पार्ट से फ्लो करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली V1 से इंक्रीज होना शुरू हुई, और जब ये सेक्शन 2 के ऊपर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। लेट्स से द वेलोसिटी एट सेक्शन 2 दैट इज B2 एंड दिस इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा? प्रेशर आपका मिनिमम होगा। तो जहां पे आपने देखा कि ये जो दो सेक्शंस थे, सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2, जहां पे क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। यू अंडरस्टैंड दिस? क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब इस प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? या तो हम U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए, फिजियोमेट्रिक का करेंगे। अब देखिए, जहां पे 1 पॉइंट अगेन आई वांट टू टेल यू, जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, सपोज आई से कि जहां पे मैं U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? आपने देखा कि थ्रोट के ऊपर जो आपकी स्ट्रीम लाइन है, फ्लूइड की जो स्ट्रीम लाइन है, दे आर द स्टेट। तो इसमें क्या करेंगे? एक लेग जो है इसकी डिफरेंशियल मैनोमीटर की, एक लेग हम जहां पे रखेंगे थ्रोट के ऊपर, एक लेग आपकी जहां पे आएगी, राइट? एक लेग आपकी इस तरीके से आएगी जहां पे, और जो दूसरी लेग होगी वो हम जहां पे लगा देंगे। इस तरीके से, राइट? तो जो दूसरी लेग होगी इस तरीके से होगी। इसमें ये याद रखिए, जब हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, इसकी डिफरेंशियल मैनोमीटर की जो वन लेग होगी डिफरेंशियल मैनोमीटर की, वो क्या होगी? कहां पे होगी? जो आपका थ्रोट है, थ्रोट के ऊपर एक लेग को हम लगाएंगे, और दूसरी लेग जो है वो आपका जो इंटेक है, इंटेक वाला पोर्शन जो आपका है, वहां पे आप इसको लगाएंगे। ये आपका जहां पे इसके ऊपर हैवियर फ्लूइड है जो मैंने भर दिया है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल मैनोमीटर से रीडिंग क्या होगा? रीडिंग में चेंज होगा। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल आपको लेक्चर दूंगा कि हाउ वी विल मेजर द प्रेशर डिफरेंस बाय द U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
तो ये उस वक्त हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये जहां पे बताना था, बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी, यू कैन से, complete without applying this U-tube differential manometer, but sometimes we will apply the physiometer also, right? physiometer से भी हम जो है जो प्रेशर डिफरेंस की रीडिंग है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका U-tube differential manometer था, इसमें एक लेग मैंने इसमें लगाया थ्रोट में और दूसरा लेग जो था वो इनटेक के ऊपर है। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। प्रेशर डिफरेंस का आपको मालूम पड़ गया कि प्रेशर डिफरेंस क्यों होगा हमारा, कि अगर इनलेट सेक्शन के ऊपर क्या होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। सेम एक इनलेट के ऊपर अगर आपका प्रेशर P1 है, वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है, तो जैसे जैसे ये कन्वर्जिंग पार्ट के ऊपर फ्लूइड जो है कन्वर्जिंग पार्ट्स थ्रू फ्लूइड पास करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता जाएगा, एंड योर द वेलोसिटी दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो एट point 22 you can say at the throat section what happens, the velocity is maximum. Velocity क्या होगा, the velocity is maximum at the throat section, and when the velocity is at maximum at the throat section, your this pressure that is minimum at the throat section. You understand? So pressure is minimum here at the section 22, or you can say throat section. Pressure P1 is maximum at the section, you can say 11. So what happens, there is a pressure difference because P2 pressure is less than the pressure P1, so there is a pressure difference. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा, हम क्या करेंगे, इसको U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाएंगे, प्रेशर डिफरेंस को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलेगा, हेड की वैल्यू हमें मिलेगी। समटाइम्स आपको डायरेक्टली हेड दिया होता है न्यूमेरिकल में, और समटाइम्स आपको इस किस्म का रीडिंग दिया होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हमें क्या होगा, हेड कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसको हम अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसमें जो भी आपका प्रिंसिपल था, जो भी फंक्शनिंग थी, दैट इज क्लियर नाउ। अब हम इसके कैलकुलेशन डिफरेंशियल पार्ट में आते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं इसका, कि हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, डिस्चार्ज का फार्मूला डिराइव करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसको आप ध्यान से देखिए। यू अंडरस्टैंड दिस? सो नाउ द डेरिवेशन करेंगे इसकी। डेरिवेशन देखिए आप, यस, पहले अजम्पशन कर लीजिए। इसमें अजम्पशन मैं ले रहा हूं जहां पे फ्लूइड जो आपका है, द फ्लूइड इज क्या है, इनकम्प्रेसिबल steady and non-viscous. So you can say that I am driving the equation of the discharge for the ideal fluid. You understand this? तो ideal fluid के लिए इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये मेरी assumption है कि फ्लूइड हमारा कैसे होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल हो, स्टडी हो और नॉन विस्कस हो। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पे हम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस का, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टू सेक्शंस। दिस इज द सेक्शन 11 एट इनटेक, एंड दिस इज द सेक्शन 22 एट थ्रोट। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज योर इंक्लाइंड, ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, दिस इज फॉर द इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर। इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर, हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं होता, ये भी मैं आपको बाद में प्रूव करके बताऊंगा। तो इनका जो डिस्चार्ज का फार्मूला होगा वो दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जहां पे मेरी सेंटर स्ट्रीम लाइन है, जहां से लेके जहां तक मैं इसका हेड जो आपका पोटेंशियल हेड है, मैं कहता हूं इसका Z1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
जो पोटेंशियल हेड है ये आपका Z2 है, राइट। ये पोटेंशियल हेड एट सेक्शन 1 कितना है, Z1, एट सेक्शन 2 दिस इज Z2। यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब इसको हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन। सो कंसिडर टू सेक्शंस हियर, we have considered two sections, that the section 1 and the section 2. The section 1 is at the intake of the venturi meter, right, and the section 2 at the throat section, you can say at the throat. तो section 1 के ऊपर क्या होगा, सपोज अगर मैं कहता हूं P1 B1 and A1, right, P1 B1 A1 is the pressure, velocity of the fluid, pressure of the fluid, velocity of the fluid, and the cross sectional area at section 1, right? P1 B1 A1, pressure, velocity and cross sectional area at the section 1. Same आपका P2 V2 and A2, that is also pressure, velocity and cross sectional area at section 2. You understand this? ये तीन चीजें मैंने ले लिया, P1 B1 A1, प्रेशर, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1 एंड P2 V2 एंड A2, बिकॉज ये तीनों चीजें डिफरेंट होंगी। जहां पे आपका प्रेशर P1 होगा हायर होगा, B1 जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द पाइप, ये जो इनलेट सेक्शन का एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पाइप, दैट इज डिफरेंट। एंड व्हेन वी विल गो टू द थ्रोट सेक्शन, तो यू हैव सीन द प्रेशर इज minimum here, so pressure is P2 because it is minimum. There is a pressure difference at the throat section and the intake section, right, inlet section, and velocity is maximum. So when I say the velocity is B2 at the throat section and the area is minimum, so area is A2. I am taking the area A2 at the cross section, at the throat section. You understand this? जो तीनों parameters we have taken. You understand this? अब इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन at section 1 and 2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम सेक्शन 1 और 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 दिस इज इक्वल टू द डिस्चार्ज एट सेक्शन 2 मींस A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2। You understand this? A1 V1, that is the discharge at section 1, A2 V2, that is the discharge at section किसमें, at section 2। तो जहां से आप क्या करें, P2 की वैल्यू निकाल लें, V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2। इस वैल्यू को इस तरीके से आप रख लें, राइट। जहां तक क्लियर। पहले मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन जहां पे सेक्शन 1 और 2 के ऊपर आई हैव टेकन द कंटिन्यूटी सेक्शन, आई हैव अप्लाइड द कंटिन्यूटी सेक्शन। और कंटिन्यूटी सेक्शन क्या है, कंटिन्यूटी क्या कहती है, रूल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या है कि जो डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 दिस इज इक्वल टू द डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। तो यहां से हमें B2 की वैल्यू मैंने ले ली, B2 की वैल्यू दिस इज A1 B1 डिवाइडेड बाई 8। नाउ apply Bernoulli's, now apply Bernoulli's equation
at section 1 and बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई कर ले, राइट। अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगा, P1 अपॉन रो जी एट 1 के ऊपर क्या होगी, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, दिस इज इक्वल टू, दिस इज एट सेक्शन 1 सेक्शन 1 के ऊपर प्रणाली इक्वेशन क्या आएगी, प्रेशर क्या था P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 is the potential head. This is from here because this is inclined venturimeter I have taken. If there is a horizontal venturimeter, then Z1 is equal to Z2, right? Then Z1 is equal to Z2. But here this is the inclined venturimeter. So this is your potential at from here to here at section 1, and this is your potential at Z2 from throat section to this reference line. This is the reference line I have taken, ground level you can say. So this is the potential at here at the throat section, and this is Z1 is at the inlet section. तो इसमें 2 के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर क्या था 2 के ऊपर, P2 तो प्रेशर था, रो जी, वेलोसिटी कितना था इसमें V2, तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। अब जहां से हम निकाल लेंगे फिजियोमेट्रिक हेड। अब फिजियोमेट्रिक हेड क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, दिस इज कॉल्ड द फिजियोमेट्रिक हेड। तो आप कह सकते हैं यहां पे देयरफॉर V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HP1, क्योंकि ये HP1 जो था, ये HP1 क्या है, फिजियोमेट्रिक हेड, एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1। You understand this? This is physiometric head here. This is equal to P2 upon rho g plus this is Z2. This is Z2. This is equal to physiometric head. तो आप कह सकते हैं इसका B2 square upon 2G plus HP2. You understand? So HP2 भी वही आ गया आपका, क्या हो गया HP2, that is the physiometric head at the section 2. This is equal to P2 upon rho g plus Z2, right? ये आपका क्या है, फिजियोमेट्रिक हेड। तो जहां से हम क्या करेंगे, हेड निकाल लेंगे, फिजियोमेट्रिक हेड निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, so this is equal to, अगर मैं ऐसे लिखूं उसको, HP1 माइनस HP2, इसको इधर ले आया, उसको उधर ले जाइए आप, B2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सो HP1 माइनस HP2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा HP, दैट इज फिजियोमेट्रिक हेड, B2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। यू अंडरस्टैंड दिस? Or you can say this is equal to V2 square minus V1 square upon 2G. This is your physiometric head. You understand this? तो B2 हमने क्या निकाला था, What is the B2? हमने कैलकुलेट किया था, B2 क्या निकाला था, इधर से किया था हमने, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई थी A1 B1, दिस इज इक्वल टू A2 B2। तो B2 मैंने कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वल टू A1
V1 अपान A2। तो B2 की वैल्यू क्या करें इसमें, जहां पे B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। देयरफॉर डेल्टा HP दिस इज इक्वल टू क्या था ये, B2 की जगह A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, राइट, माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G, राइट। तो V1 स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें आप, V1 स्क्वायर कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर अपान 2G कॉमन ले लें अगर, तो हमारा आ गया A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1, राइट। A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है हमें, अब डेल्टा HP दिस इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G, दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, A1 स्क्वायर, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस? यस। तो B1 स्क्वायर क्या आ गया इसमें से, व्हाट इज द B1 स्क्वायर? चांस से आप क्या करें, B1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2G इंटू डेल्टा HP इंटू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर minus A2 square. You understand this? So what is your B now? B is equal to, therefore B1 क्या होगा आपका, A1 रूट ऑफ 2G डेल्टा HP डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका B1 का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ B1। तो B1 आपने कैलकुलेट कर लिया, यू हैव कैलकुलेटेड द B1 इन टर्म्स ऑफ दिस प्रेशर हेड। डेल्टा H हमने कैलकुलेट कर लिया जहां से, और ये आपका आ गया V1 आपके पास आ गया। अब आपका जो डिस्चार्ज होगा या रेट ऑफ फ्लो होगा डिस्चार्ज, वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, राइट। तो आप A1 B1 से भी डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड B1 है, अगर मैं जहां पे B2 की वैल्यू कैलकुलेट करता, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, B2 की वैल्यू कैलकुलेट की और जहां पे सब्स्टिट्यूट करके B1 निकाल लिया। कुछ बुक्स में आप क्या करें, B1 की वैल्यू कैलकुलेट करें और जहां पे B2 की वैल्यू निकाल लें। यू अंडरस्टैंड? तो डिस्चार्ज दोनों केस में सेम होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्चार्ज इज इक्वल टू A2 B2 और A1 B1। तो जहां मैंने B1 निकाला है, इसलिए डिस्चार्ज आपका होगा A1 into V1, this is equal to A1 into V1, this is equal to A1 square
सॉरी, ये A2 स्क्वायर आना था जहां पे, यस, यस, राइट। तो डिस्चार्ज होगा आपका A1 इंटू B1, तो ये आपका आ जाएगा A1 इंटू A2 रूट ऑफ 2G डेल्टा HP अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आ गया डिस्चार्ज। यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा जो डिस्चार्ज आ गया वो क्या आ गया? दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ दिस। इसको इधर से दोबारा एक दफा कर लेते हैं। आई गॉट सम कंफ्यूजन। इसको डेरिवेशंस को यहां पे कर लेते हैं। पीछे कुछ हुआ था गलत। जहां तक तो हमने किया था, दोबारा एक दफा इसको कर लेते हैं। B2 स्क्वायर चार से कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, पता नहीं मैंने ठीक है। B12G इज इक्वल टू डेल्टा HP, राइट। तो B1 की वैल्यू क्या है? हमें B2 की क्या वैल्यू निकाली थी? ये था A1 B1 दिस इज इक्वल टू B2 A2, राइट। Therefore B2 is equal to A1 into B1 upon A2. You understand this? तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू, दोबारा एक दफा मैं कर रहा हूँ कि आई जस्ट गॉट सम कंफ्यूजन कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, बट आई थिंक दैट वाज राइट आल्सो। एक दफा दोबारा आपका हो जाएगा। तो B2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू A1 V1 A1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, राइट। तो V1 स्क्वायर कॉमन ले लें आप, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2G, दिस इज इक्वल टू, ये आपका डेल्टा HP था ना, ये डेल्टा HP लिख लो आप। इसको आगे कर लें, यहां पे B1 स्क्वायर क्या आएगा? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू 2G, राइट। देयरफॉर जहां से मैं B1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, V1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डेल्टा HP, ये वाला डेल्टा HP था ना, ये सारी चीजें डेल्टा HP इंटू A2 स्क्वायर इंटू 2G
upon A1 square minus A2 square. You understand? V1 कितना आ गया? Therefore V1 this is equal to V1 कितना आ गया? A2 रूट आ जाएगा जे, A2 स्क्वायर का रूट A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा HP अंडर रूट A1 square minus A2 square. You understand this? So I think this is clear now. अगर पीछे कोई थोड़ा सा मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में तो ये क्लियर हो गया आपका। मैंने दोबारा इसको कर दिया, राइट। तो अब आपका B1 का वैल्यू आ गया। B1 क्या आ गया? B1 आपका B1 दिस इज इक्वल टू A2 इंटू रूट ऑफ 2G डेल्टा HP। ये फिजियोमीटर हेड ले रहा हूं बिकॉज दिस इज ए इंक्लाइन वेंचुरीमीटर। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो वहां पे सीधा हेड आएगा, बिकॉज Z1 इज इक्वल टू Z2, तो वहां पे फिजियोमीटर हेड नहीं मिलेगा, वहां पे पक्का प्रेशर हेड मिलेगा, राइट। सो 2G डेल्टा HP रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो डिस्चार्ज Q दिस इज इक्वल टू A1 इंटू V1 एंड दिस इज इक्वल टू A1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये V1 आपके पास वैल्यू है, तो ये आपका आ गया A1 V1 A1 इंटू A2 इंटू 2G डेल्टा HP डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये मैं 2 दफा इसका कैलकुलेशन करके दे दिया आपको। अगर पहले कोई मिस्टेक होगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका डिस्चार्ज, दिस इज योर डिस्चार्ज। अब ये जो डिस्चार्ज आपने कैलकुलेट किया, दिस इज फॉर द आइडियल फ्लूइड, बिकॉज आई हैव टेकन द assumption here that the fluid is steady, incompressible and unviscous or inviscous, right? This is the assumption. This is for you can say ideal fluid, or you can say this is a theoretical discharge. जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज हमें निकालने के लिए एक्चुअल डिस्चार्ज जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू CD, बिकॉज दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड, बट रियल फ्लूइड के लिए हमें क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा। जहां पे तो क्या था? आइडियल फ्लूइड था, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल था, स्टडी था, अनविस्कस था, राइट। लेकिन एक्चुअल डिस्चार्ज फॉर रियल फ्लूइड के लिए क्या करेंगे? तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू सेम A1 इंटू A2 2G डेल्टा HP अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज योर एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरीमीटर, दिस इज द फॉर्मूला। और CD की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 लेते हैं, 0.98 0.99 लाइक दिस। तो CD की जो वैल्यू होगी, CD क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन 1 से 0.98 or 0.99. You understand? So this is the application of the venturimeter, complete application where we have derived the formula, because the venturimeter that is used for measuring the device, measuring the discharge of the fluid which is passing through the pipe, and this is the
formula of the discharge in case of the venturi meter. A1, what is the A1? Area of the cross section at the section 1, or you can say area of the cross section of the pipe. A2, that is the area of the cross section of the throat, into 2G delta HP. This is the physiometer head I am taking. Either you can write down like this, 2G into H, right? Because this is the inclined venturi meter. I am just driving it for the inclined venturi meter. तो आपको प्रॉब्लम में फिजियोमेट्रिक हेड भी दिया होगा, या अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपको सिंपल हेड दिया होगा, तो आपने 2GH जहां पे ये HP की जगह H सेम होगा ये आपने भरना है, एंड डिवाइडेड बाय दिस A1 स्क्वायर माइनस A2 square, right? A1 square minus A2 square. So this is for the real fluid, and for the actual fluid I am just multiplying this by CD, that is the coefficient of discharge, and this is less than 1. You understand? So this is the for the inclined venturi meter, and the same formula of the discharge, that is for the horizontal venturi meter also. That is for the horizontal venturi meter also. There is no difference of the formula of the discharge here. So आप कह सकते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन का, इसके एंगल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता डिस्चार्ज के ऊपर. हेड जो है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा. यू अंडरस्टैंड? इसको बाद में भी हम प्रूव करेंगे. सो टुडे माय लेक्चर इज ऑन ओनली ऑन वेंचुरी मीटर. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपको गेट में इसका आ सकते हैं कि व्हाई the converging part is short and why the diverging part is long. What is the reason? इसके ऊपर एक लेक्चर दूंगा, काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, so that आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए. You understand? So today this is all about. Thank you very much.